متبرک پاکیزہ سرزمین پر عرس واحد طیب طاہری میں تشریف لانے والے جملہ مسلمانان اہل سنت و سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ اللہ کے رسول سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ میں درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ شاعر کہتا ہے، میں کدا جھوم اٹھی رقص میں مینا آیا، میں کدا جھوم اٹھی رقص میں مینا آیا، جام وحدت کا لیے شاہ مدینہ آیا، جام وحدت کا لیے شاہ مدینہ آیا، اور شاید سرکار میرے آج ہیں کھولے گیسو، شاید سرکار میرے آج ہیں کھولے گیسو، لوگ کہتے ہیں کہ ساون کا مہینہ آیا، لوگ کہتے ہیں کہ ساون کا مہینہ آیا، اور کیسے بہلائیں گے جنت میں فرشتے یا رب، کیسے بہلائیں گے جنت میں فرشتے یا رب، ان کے دیوانوں کو جب یاد مدینہ آیا، ان کے دیوانوں کو جب یاد مدینہ آیا۔ اور اس مقدس سرزمین کی تعریف و توصیف بیان کرتے ہوئے بریلی کے تاجدار نے فرمایا تھا، اللہ اللہ عز و شان و احترام بالگرام، اللہ اللہ عز و شان و احترام بالگرام، عبد واحد کے سبب جنت ہے نام بالگرام، آسماں عینک لگا کر مہر و مہ کی دیکھ لے، جلوے انوار حق ہے صبح و شام بالگرام، روز عرس آوار گانے دشت غربت کے لیے، من و سلوہ ہے مگر فوز و ادا میں بالگرام۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہماری اصل اولاً درود پاک ہی سے، ولہذا تمام حضرات بلند آواز میں نبی کریم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ اللہ فرماتا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، اللہ لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت کو ڈال دے گا۔ سیدنا سرکار میر عبد الواحد بالگرامی علیہ الرحمہ اور آپ کے صاحبزادے سیدنا سرکار میر طیب علیہ الرحمہ اور سیدی سرکار طاہر میاں علیہ الرحمہ اور تمام بزرگان دین جو یہاں پر آرام فرما ہے، اس آیت کریمہ کی روشنی میں ان کی زندگی بتا رہی ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں نیک کام کیے، وہی کام کیے جن کے لیے بریلی کے تاجدار نے
फरमाया था, काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, एक होना में रजा तुम पे करोड़ों दो। अगर उन्होंने नेक काम नहीं किया तो आज लोगों के दिलों में उनके लिए तड़प और मोहब्बत कैसी है मालूम हुआ इस आयत करीमा की रोशनी में कि उन्होंने अपनी जिंदगी अल्लाह के लिए वक्फ फरमा दी थी। और जो अल्लाह के लिए अपनी जिंदगी को वक्फ कर देता है, बुजुर्गों ने फरमाया मन कान लिल्लाहि कान अल्लाहु लहु, जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह उसका हो जाता है। बेशक बेशक सैयदना सरकार मीर अब्दुल वाहिद अलैहि रहमा की जात वो जात है। आपने एक किताब तस्नीफ फरमाई, वैसे आपकी एक दर्जन से ज्यादा किताबें हैं। जिन किताबों के इसमें मुझे मालूम हो सके उनकी तादाद एक दर्जन से ज्यादा है। आपकी मशहूर ज़माना तस्नीफ सबए सनाबिल शरीफ बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मकबूल है। सैयदना सरकार अल्लामा आजाद बिलग्रामी अलैहि रहमत व रिज़वान मआसरुल कलाम में तहरीर फरमाते हैं कि मैं एक बार दारुल खिलाफा यानी दिल्ली शाहजहांबाद में सैयदना सरकार शाह कलीमुल्लाह चिश्ती दहलवी अलैहि रहमत व रिज़वान से मुलाकात करने के लिए गया। आपकी बारगाह में हाजिर हुआ, मुलाकात की, मेरी गुफ्तगू आपसे हो रही थी। दौराने गुफ्तगू सैयदना सरकार मेरे अब्दुल वाहिद बिलग्रामी अलैहि रहमा का तज़किरा आ गया। जब उनका तज़किरा आया तो शाह कलीमुल्लाह चिश्ती दहलवी अलैहि रहमा आपके फज़ाइल व मनाक़िब, आपकी खूबियां, आपके तौसीफ़ व कमालात काफी देर तक बयान फरमाते रहे। काफी देर तक बयान फरमाने के बाद फरमाते हैं एक खास वाक़या मुझसे जिक्र फरमाया। खास वाक़या क्या था वो इरशाद फरमाते हैं, एक मर्तबा का वाक़या है, मैं मदीना मुनव्वरा में यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर मुबारक में रात के वक्त अपने बिस्तर पे लेटा हुआ था, बिस्तर पे सोया हुआ था। फरमाते हैं शाह कलीमुल्लाह चिश्ती दहलवी अलैहि रहमा फरमाते हैं मैं ख्वाब में देखता हूँ कि मैं हूँ और मेरे साथ गुजरात के एक बुजुर्ग हैं सैयद सिबगतुल्लाह अलैहि रहमत व रिज़वान, हम दोनों नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक साथ पहुंचे हैं। हम दोनों जब नबी की बारगाह में पहुंचे, एक बात यहाँ रुककर मैं आपको बता देना चाहता हूँ, बुखारी शरीफ में हदीस पाक है, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया मन रआनी फिल मनामी फक़द रअल हक़्क़ व इन्न शैताना लायत मक़लूबीन। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमा दिया अगर कोई इंसान, अगर कोई मेरा गुलाम नेक मोमिन मुसलमान अगर किसी ने ख्वाब में मेरी ज़ियारत की, उसने वाक़ियातन मुझे ही देखा, क्योंकि शैतान मेरे से इख्तियार कर ही नहीं सकता है। बेशक अगर किसी मुसलमान को अल्लाह के नबी का दीदार हो जाए तो ख्वाब झूठा नहीं सच्चा हुआ करता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया शैतान मेरे से इख्तियार नहीं कर सकता है। जी बेशक। अब आगे वाक़या फरमाते हैं शाह कलीमुल्लाह चिश्ती दहलवी अलैहि रहमा कि हम दोनों अल्लाह के नबी की बारगाह में हाजिर हुए। हम क्या देखते हैं अल्लाह के नबी तशरीफ फरमा है, सहाबा कराम का मजमा है, औलिया आज़म का मजमा है, अल्लाह के नबी तशरीफ फरमा है, सब लोग बैठे हुए हैं। हम दोनों भी पहुंच गए। हम क्या देखते हैं उसी मजमे में एक नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग हैं, एक अल्लाह वाले बैठे हुए हैं और अल्लाह के नबी सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे गुफ्तगू फरमा रहे हैं और गायत दर्जा इल्तिफात के साथ, तवज्जुह कामिल के साथ, मोहब्बत के साथ गुफ्तगू फरमा रहे हैं। और हाल ये है कि अल्लाह के नबी सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लबों पर मुस्कुराहट है, लबों पर मुस्कुराहट है। आप गुफ्तगू फरमा रहे हैं। फरमाते हैं मजलिस बर्खास्त हो गई। कुछ लम्हे के बाद अल्लाह के नबी को वो मजलिस बर्खास्त हुई। शाह कलीमुल्लाह चिश्ती फरमाते हैं मैंने सय्यद सिबगतुल्लाह से पूछा ये कौन शख्स है, ये जात कौन सी है, ये कौन आला जात है, इनसे अल्लाह के नबी गुफ्तगू फरमा रहे थे। उन्होंने फरमाया ये जात कोई और नहीं बल्कि बिलग्राम के सैयदना सरकार मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी हैं। अल्लाह के नबी की बारगाह में जो हाजिर थे अल्लाह के नबी जिनसे गुफ्तगू फरमा रहे थे वो फरमाते हैं इस मुलाकात का, इस गुफ्तगू का, इस खुशी का सबब क्या है। आप इरशाद फरमाते हैं इस गुफ्तगू का सबब ये है, इस खुशी का सबब ये है कि आपकी किताब सबए सनाबिल शरीफ बारगाह में हो चुकी है। माशाअल्लाह। यह है ज़ात सैयदना सरकार मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी अजीम ज़ात है। ऐसे ही पढ़े लिखे ताजदार ने नहीं कह दिया था अब्दुल वाहिद के सबब जन्नत नामे बिलग्राम, के सबब जन्नत है नामे बिलग्राम। वाह। आप जानते हैं कोई इंसान अपने मुताल्लिक कोई दावा करता है उसकी दो ही सूरतें हैं, या तो वो सच्चा है या तो झूठा है।
दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो वो सच्चा है या तो वो झूठा है। सैयदना सरकार मीर अब्दुल वाहिद अलैहि रहमान सबे सनाबिल शरीफ में तहरीर फरमाते हैं। अपने पीरो मुर्शिद का जिक्र किया, उसके बाद में इरशाद फरमाते हैं, बादशाह अकबर का जमाना है, मेरे पीरो मुर्शिद की बारगाह में चंद मुगल आए और उन्होंने आपसे कहा कि हिंदुस्तान में सहीह नसब असली और सच्चे सादात नहीं पाए जाते। हमारे यहाँ ऐसे सादात पाए जाते हैं जो सहीह नसब होते हैं, साबित नसब होते हैं, परहेजगार होते हैं, इबादत गुजार होते हैं, मुत्तकी हुआ करते हैं। उन्होंने कहा हिंदुस्तान में ऐसे सादात नहीं पाए जाते हैं। आगे वो लोग कहने लगे उनका आलम यह है, हालत यह है कि लोग उनके जिस्म के बाल को लेते हैं, आग में डाल देते हैं, आग उसको जलाते नहीं है। ये होती सादात कलाम की पहचान। आपके पीरो मुर्शिद सैयदना सरकार मीर अब्दुल वाहिद बेलग्रामी के पीरो मुर्शिद इरशाद फरमाते हैं, ऐसे सादात हमारे यहाँ भी पाए जाते हैं। जब उन लोगों ने सुना, कहने लगे कि आप तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, आपकी बात सही नहीं है, आपके यहाँ से सादात नहीं पाए जाते हैं। चुनांचे जब उन्होंने कहा अगर आपके यहाँ से सादात पाए जाते हैं तो उनमें से किसी एक को बुलाइए और मेरा दावा सच करके दिखाइए कि आपके यहाँ सादात पाए जाते हैं, उनमें ऐसे खुसूसियत है या नहीं। सैयदना सरकार मीर अब्दुल वाहिद अलैहि रहमान इरशाद फरमाते हैं, उन्होंने मेरे चचा को बुलाया जिनका नाम ताहिर था, ताहिर के माना पाक हुआ करता है। सैयदना सरकार इरशाद फरमाते हैं मेरे चचा का नाम ताहिर था, वो उनका नाम ही नहीं ताहिर था बल्कि सरापा जिस्म, पूरा जिस्म ताहिर था, वो सरापा पाक थे। चुनांचे आपके पीरो मुर्शिद ने आपके चचा सैयदना ताहिर अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान को बुलाया। बुलाने के बाद लोगों के सामने पेश कर दिया, आग जल रही है। आज सैयदना सरकार शेख शफीकुद्दीन अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान ने आपके चचा के जिस्म अतहर से एक बाल लिया, सिर्फ एक बाल लिया, और बाल को लेने के बाद दहकती हुई आग में डाल दिया। काफी देर तक आपका मुक़द्दस बाल, आपके जिस्म अतहर का मुबारक बाल और आपके जिस्म अतहर का मुबारक बाल आग में पड़ा रहा। काफी देर तक काफी देर के बाद जब उस बाल को निकाला गया, बाल को जब निकाला गया तो आलम यह था कि आग ने जलाया तो जलाया ही नहीं बल्कि उस पर आग का असर भी नहीं पहुंचा। बेशक बेशक आग का असर तक नहीं पहुंचा। जब उन लोगों ने इतना देखा कि वे सैयदना शेख शफीकुद्दीन के कदमों में गिर पड़ते, कि वे सैयदना ताहिर के कदमों में गिर पड़ते, माफी मांगते, हुजूर मादर चाहता हो, हुजूर मुझे माफ कर दीजिए। तभी तो बरेली के ताजदार ने कहा था, या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा का तो है नहीं तेरा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। आप यहाँ सैयदना सरकार मीर अब्दुल वाहिद अलैहि रहमान के ओर से पाक में जी माशाअल्लाह, और उनका एक खास पैगाम मैं आपको सुना देना चाहता हूँ जी। सबे सनाबिल शरीफ में सुम्बुलाए ऊला में आप तहरीर फरमाते हैं, अल्लाह के नबी की हदीस पाक नकल करते हुए इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह के नबी ने अपनी बेटी सैयदना फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से इरशाद फरमाया, ला तत्तकी अन्नी बिन्तु रसूलिल्लाह इअमली इअमली इअमली। अल्लाह के नबी ने अपनी साहबजादे से इरशाद फरमाया, ऐ फातिमा इस बात पर भरोसा मत करना कि मैं अल्लाह के नबी के साहबजादी हूँ, अमल करती रहो अमल करती रहो अमल करती रहो। अल्लाह के नबी ने एक बार नहीं बल्कि 3 बार इरशाद फरमाया। आप इरशाद फरमाते हैं, सैयदना सरकार मीर अब्दुल वाहिद अलैहि रहमान इरशाद फरमाते हैं, जब आयत करीमा व अंज़िर अशीरतकल अक़रबीन ये आयत करीमा नाजिल हुई तो अल्लाह के नबी ने अपने तमाम अहले खाना को बुलाया, जमी अहले बैत को अपनी बारगाह में बुलाया। फातिमा से इरशाद फरमाया, ऐ फातिमा इस बात पर वह फातिमा जिनके मुताल्लिक़ खुद अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया था, फातिमा तो सय्यदतुन निसाई अहलिल जन्नह, फातिमा जन्नती औरतों के सरदार है। उनसे इरशाद फरमाया, इस बात पर भरोसा मत करना कि मैं अल्लाह के नबी के साहबजादी हूँ, अमल करती रहो अमल करती रहो अमल करती रहो। इसके बाद अमल करती रहो अमल करती। इमाम हसन हुसैन जिनके मुताल्लिक़ अल्लाह के नबी ने फरमाया था, अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाबी अहलिल जन्नह, सुभान हसन अल्लाह। हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। उनसे इरशाद फरमाया, अल जन्नतु लिल मुतीई
वलौ काना अब्दन हबशियन वन्नारु लिलआसी वलौ काना सय्यदन कुरैशियन। ऐ हसनैन करीमैन, ऐ मेरे नवासो, जन्नत फरमा बरदार के लिए है और जहन्नम नाफरमान के लिए है। जन्नत फरमा बरदार के लिए है अगरचे वो हबशे गुलाम हो, और जहन्नम नाफरमान के लिए है अगरचे सय्यद कुरैशी हो। इसके बाद अल्लाह के नबी अज़वाजे मुतहहरात की जानिब मुतवज्जे हुए, इरशाद फरमाया, ये आयत करीमा पढ़ करके सुना दे। या निसा अन्नबी मैं याते मिनकुन्ना बिफाहिशतिन मुबय्यिनतिन युदाअफ लहुल अज़ाबु ज़िफ़ैन व काना ज़ालिका अलल्लाहि यसीरा। ऐ नबी के बीवियों, ऐ मेरे बीवियों, तुम में से जो कोई खुला हुआ जुर्म करेगी तो अल्लाह उसे दोगुना अज़ाब देगा, अल्लाह उसे दोगुना अज़ाब देगा, और यह अल्लाह पर आसान है। अल्लाह के नबी सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फातिमा से फरमाया, हसनैन करीमैन से फरमाया, और अपनी बीवियों से फरमा दिया कि नबी के घराने का होने के बावजूद तुम्हें इस बात पर भरोसा नहीं करना है कि हम अल्लाह के नबी के घर वाले हैं, इस पर अमल करना है। अल्लाह के नबी ने फरमाया उनसे, अल्लाह के नबी का हुक्म था, जाहिर में वो लोग मुखातब थे मगर बातिन में और आप मुखातब हैं कि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमा दिया, बुजुर्गों के दामन से वाबस्ता हो, वाबस्ता रहो, इसे पीर का मुरीद रहो, मगर बुजुर्गों के दामन से वाबस्ता होने का मतलब ये नहीं है कि अमल करना छोड़ दो, नमाज़ें पढ़ना छोड़ दो, रोज़े रखना छोड़ दो, अमाले सालिहा करना छोड़ दो। आप जरा मुझे बताइए, वो सहाबे कराम सिद्दीक़ अकबर हैं, फारूक आज़म हैं, उस्मान गनी हैं, मौलाए कायनात हैं, अशरे मुबशरा हैं, असहाबे बद्र हैं, उनके मुतालिक अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया था, या अमलु मा शि'तुम क़द गफ़रतु लकुम, असहाबे बद्र तुम जो चाहो करो, अल्लाह ने तुम्हें बख्श दिया है। मगर उन सहाबे कराम के मुतालिक आप पढ़ते चले जाइए, सहाबे कराम को अल्लाह के नबी ने जन्नत की बशारत अता फरमा दी थी, मगर आप कहीं नहीं पाएंगे तो उन सहाबे कराम की एक वक्त की नमाज भी क़ज़ा हुई हो। सैयदना सरकार बायज़ीद बुस्तामी अलैहि रहमतु व रिज़वान, आप सफर में तशरीफ ले जा रहे हैं, आपके पीछे पीछे आपका खादिम चलता चला जा रहा है, आपने पीछे मुड़ करके देखा तो आपका खादिम आपके नक्शे कदम पर, आपके कदम जहाँ पड़ते हैं खादिम वहीं पर कदम रखता है। आपने पूछा, मेरे मुरीद, ऐ मेरे सच्चे मुरीद, ऐ मेरे चाहने वाले, ऐ मेरे मानने वाले, जरा तो ये बता तो ऐसा क्यों कर रहा है, जहाँ मेरे कदम पड़ रहे हैं अपना कदम वहीं क्यों रख रहा है। मुरीद ने अर्ज़ किया, हुजूर मैं अपना कदम आपके कदम मुबारक के नक्श पर इसलिए रख रहा हूँ ताकि आपके कदमों के फयूज़ व बरकत मुझे मिल जाए। बायज़ीद बुस्तामी उसकी जानिब मुखातब होकर के इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे मुरीद सुन ले, अगर मैं तुझे अपने खाल उतार करके अपने खाल उतार करके पहना दो फिर तुझे कोई फायदा नहीं होने वाला है। तेरा फायदा इसी में है कि अल्लाह उसके रसूल के हुक्म फरमा बरदारी करना। आपने इरशाद फरमा दिया, फायदा तेरा इसी में है कि तू अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म की इताअत कर। आपने इरशाद फरमा दिया, मेरे नक्शे कदम पर कदम रखने से, मेरी खाल में पहन लेने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। अभी तो पहले के ताजदार ने अर्ज़ किया था, या रसूल अल्लाह काम वो ले लीजिए, काम वो जो राज़ी करे, एक हो नामे रसा, करोड़ों आप पैगाम मैं आपको देना चाहता हूँ। आज आप लोग अल्लाह वाले के उसमें आए हैं, 450 साल से ज़ायद का अरसा गुजर गया उनको विसाल फरमाए हुए, मगर आज भी दुनिया उनकी दीवानी है, उनकी बारगाह में हाथ लेकर ताम रही है। आप जरा गौर करें, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, बुखारी शरीफ में हदीस है, अल्लाह के नबी ने फरमाया, मेरी उम्मत के लोगों की उम्रें 60 साल से 70 साल के दरमियान हैं। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, मुफ्ती साहब अल्लाह तशरीफ फरमाए, मेरे उम्मत के लोगों की उम्रें 60 साल से 70 साल के दरमियान होंगे। अक्सर लोगों की उम्रें इतनी ही होती हैं, उसी में लोग वफात कर जाते हैं, विसाल कर जाते हैं। सैयदना सरकार मीर अब्दुल वाहिद अलैहि रहमा की जिंदगी 100 साल से ज्यादा थी, 450 साल से ज्यादा गुजर चुके हैं आपको विसाल फरमाए हुए, मगर वजह क्या है, सबब क्या है कि आज लोग उनके दीवाने हैं, लोग उनका नाम आज भेले रहे हैं, उनके नाम का चिराग जला रहे हैं, उनके बारगाह में हाजिर दे रहे हैं। आज हमारे औलाद के घर का कोई भी इंसान 100 साल की जिंदगी गुजार करके दुनिया से चला जाता है, पड़ोस वाले भूल जाते हैं, मोहल्ले वाले भूल जाते हैं, गांव वाले भूल जाते हैं, ताकि औलाद भी भूल जाती है कि मेरा कोई आबा अजदाद, मेरा कोई बाप दादा इस दुनिया में था, इसके उम्र 100 साल से ज्यादा हुई थी। आप जरा गौर कीजिए, सरकार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सैयद सरकार आला हज़रत सैयदना सलाल मसूद गाजी 18 साल की उम्र में इस दुनिया से चले गए, मगर आज लाखों की भीड़ इन बुजुर्गों की बारगाह
में हाजिर होती है, क्यों हाजिर होती है? वजह यह है, सबब यह है कि उन्होंने वो काम किया था जो अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म था। उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया कि दुनिया उनसे दूर भागे, बल्कि अल्लाह ने अल्लाह की रज़ा के लिए उन्होंने वो काम किया कि अल्लाह ने लोगों को लिहाजा कुर्स लाने का मतलब ये नहीं है, बल्कि मतलब ये है इनकी बारगाह में हाजिर आए हैं, इनकी जिंदगी से सीख करके जाएं और अपनी जिंदगी में वो काम करें कि अल्लाह रसूल राजी हो जाए, दुनिया नाराज हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अल्लाह उसके रसूल राजी हो जाएंगे, दुनिया फिर सब कामयाब हो जाएगी। अल्लाह हम सबको सैयदना सरकार मीर अब्दुल वाहिद बिल इकरामी अलैहि रहमत व रिज़वान के फैज़ व बरकत से माला माल फरमाए और हम सब के हाजिरे को इस बारगाह नाज़ में कबूल फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बिल मुकल्लिम ज़म्बी व तौबा इलैहि।